اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید شکیل الحق ہے اور میں آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل شکیل کراچی والے سے مخاطب ہوں۔ ہم اس چینل کے اوپر کراچی پہ بات کرتے ہیں، ہم اس چینل کے اوپر کراچی کے مسائل کو ایکسپلور کرتے ہیں، ہم اس چینل کے اوپر ان مسائل کا سلوشن پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کراچی کے مسئلے کا کوئی حل ہے، کراچی میں مسائل کے انبار ہیں، ان مسئلے کا کوئی حل ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کیجیے، ہم آپ کی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ کے پاس بھی ان مسائل کے جو انبار ہیں ان میں سے کسی ایک مسئلے کا حل موجود ہے تو ہم سے رابطہ کیجیے، ہم آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ کوئی بھی چیز ہو، آپ کو کسی کو کوئی لیٹر لکھنا ہو تو اس کے لیے کاغذ اور پین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے تو وہ لیٹر آپ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ لیٹر کمپیوٹر کے ذریعے لکھنا چاہ رہے ہیں یا ٹائپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس ٹائپ رائٹر ہونا چاہیے یا کمپیوٹر ہونا چاہیے، اور کمپیوٹر ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ کی بورڈ بھی ہونا چاہیے۔ کی بورڈ نہیں ہوگا تو آپ لیٹر ٹائپ نہیں کر سکیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے جو اجزاء ترکیبی ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے گھر کے اندر، کچن کے اندر کوئی ڈش بن رہی ہے، کوئی کھانا تیار ہو رہا ہے، اس کے جو اجزاء ترکیبی ہیں وہ اگر موجود نہیں ہیں تو کھانا تو تیار ہو جائے گا لیکن ذائقے دار نہیں ہوگا۔ بالکل یہی حال کراچی کا ہے۔ کراچی کے اندر زندگی تو گزر رہی ہے لیکن مزیدار نہیں ہے۔ کراچی کے اندر لوگ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لوگ ٹرانسپورٹ پہ، لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سفری سہولتیں موجود تو ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ سفری سہولتوں کے اندر مسائل ہیں۔ لوگ پانی تو استعمال کر رہے ہیں لیکن وہاں بھی مافیا نے قبضہ جمایا ہوا ہے۔ لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں، لائٹ استعمال کرتے ہیں لیکن وہاں بھی اداروں کی ملی بھگت سے کے الیکٹرک کو مافیا بنا دیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے آپ سڑک پہ جائیں، آپ کو بھکاری مافیا ملے گا۔ آپ فٹ پاتھ پہ نکلیں، آپ کو قبضہ مافیا ملے گا۔ آپ میدانوں میں چلے جائیں، وہاں بھی قبضہ مافیا ملے گا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کہا ہے، پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا ہے کہ اس کا حل ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ آپ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کسی کے گھر میں اگر کھانا تیار ہو رہا ہے تو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانا کتنے لوگوں کا تیار ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ آپ کے گھر میں لوگ کتنے ہیں تو آپ کھانا کتنے لوگوں کا تیار کریں گے۔ یہی حال کراچی کا ہے۔ حکومت سہولت دینے کے لیے جو اس کے پاس آمدنی ہوتی ہے، کراچی کو جو آمدنی ملتی ہے، اس پورا جو سسٹم ہے پاکستان کا، اس میں جو آمدنی ملتی ہے وہ 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے آپ کو بجٹ دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر 3.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ تو کیسے ہوگا؟ مسائل تو جنم لیں گے۔ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آپ کے شہر میں
जितने लोग रहते हैं उनको गिन लिया जाए, उनको ठीक गिना जाए। लोग समझते हैं कि ये मर्दमशुमारी एक सियासी मसला है। भाई ये सियासी मसला नहीं है, इंतज़ामी मसला है। आप इसको सियासी मसला क्यों बना रहे हैं? सियासी मसला नहीं है। हाँ, सियासी जमातें उस पर एहतजाज कर रही हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन ये इंतज़ामी मसला है। आपके घर के अंदर अगर खाना तैयार होगा 5 लोगों के लिए और खाने के लिए 10 लोग आ जाएंगे तो खाना तो कम पड़ेगा, फिर प्लेटें तो टूटेंगी, लोग एक दूसरे की प्लेटों पर झपटेंगे। जब एक घर में ये होगा तो फिर एक शहर में भी यही होगा। हमें सबसे पहले, मैं ये समझता हूँ, मेरी राय है जो गलत भी हो सकती है, मैं ये समझता हूँ कि कराची के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ों को इंदराज होना चाहिए, जिसको आप कहते हैं कि जी आप उसको काउंट कर लें। मैं तो समझता हूँ कि कराची की सड़कों के ऊपर, सिग्नल्स के ऊपर जो भिखारी हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उनको भी रजिस्टर्ड करना चाहिए, ताकि पता चले कि कितने लोग भीख मांगते हैं और भीख मांगने के नतीजे में कितना बड़ा माफिया या कारोबार, उनके नज़र में वो कारोबार है, हमारी नज़र में वो माफिया है। हमें पता होना चाहिए कि कितने जो टैंकर हैं वो कराची वालों को पानी सप्लाई करते हैं, टैंकर भी रजिस्टर्ड होने चाहिए। उसके साथ कितने लोग रोजगार से वाबस्ता हैं उसको भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब तक के कितने असातिज़ा पढ़ा रहे हैं उनको भी हमारे यहाँ तो रजिस्ट्रेशन का कोई तस्वर ही नहीं है। हर चीज़ की रजिस्ट्रेशन होने चाहिए और इस रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसा कि मैंने पहले कहा है, कि हम जब तक कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज की जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर हम बायोमेट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर हम RFID का इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मसले को, इतना बड़ा मसला कोई नहीं है ये। हम कहते हैं कि जी ट्रैफिक का मसला है, ट्रैफिक का मसला कराची में बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी ऊंची इमारत पे चढ़ जाएं और सड़क के नीचे आप उस ऊंची इमारत से सड़क की तरफ जब नज़र दौड़ाएंगे तो आपको महसूस होगा कि सड़कें चौड़ी हैं, थोड़ी सी ट्यूनिंग की ज़रूरत है, ये ठीक हो जाएगा। आप किसी ड्रोन कैमरे से किसी तस्वीर लेके देखें, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ट्रैफिक जैम है, आप ड्रोन कैमरे से तस्वीर लें, आपको पता चल जाएगा कि वो ट्रैफिक जैम क्यों है। सड़क चौड़ी करने की ज़रूरत है या थोड़ी सी ट्यूनिंग की ज़रूरत है। हमें तमाम चीज़ों को, जब तक कि हम एक एक आदमी को कराची के रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, एक एक पथारों को जब तक हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, एक एक ठेलों को, एक एक रजिस्टर, एक एक दुकान को जब तक हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, एक एक भिखारी को जब तक हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, उस वक्त तक कराची का मसला हल नहीं होगा। हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा, हमें डाटा साइंस की तरफ जाना पड़ेगा, उस डाटा को ट्यूनिंग करनी होगी। जब हम डाटा की ट्यूनिंग कर लेंगे तो हमारे मसाइल खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। और जब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे, डाटा हमारे पास आ जाएगा, वहाँ से हम आमदनी के नए ज़राए भी तलाश कर सकते हैं। आइए कराची के लिए काम करें, इस बात पर जोर दें कि हमें रजिस्टर्ड होना होगा, और अगर हम रजिस्टर्ड नहीं होंगे, मैं नौजवानों से कहता हूं कि कोई ऐसी ऐप बनाएं जिसके अंदर लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करें और उस रजिस्ट्रेशन में वो ये भी बताएं कि वो क्या करते हैं। अगर भीख मांगते हैं तो बता देंगे जी हम भीख मांगते हैं, अगर वो स्टॉल लगाते हैं, वो पथारा लगाते हैं, वो ठेला लगाते हैं, वो किसी बाज़ार के अंदर अपना काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, वो तमाम के तमाम लोगों को रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं होंगे, जब तक ये डेटाबेस नहीं बनेगी, जब तक ये पता नहीं होगा कि कितने लोग कराची में रह रहे हैं, तो उनके लिए सहूलत मुहैया नहीं की जा सकती है। पूरी दुनिया में नहीं होती है और कराची में भी नहीं हो सकेगी। सबसे पहले रजिस्टर्ड होना होगा।
हर दुकान वाले को, हर पथारे वाले को, हर ट्रांसपोर्टर को, हर टैक्सी वाले को, हर एक को रजिस्टर्ड होना होगा। रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाएंगे तो नहीं हो सकता है। आइए, नौजवानों से कह रहा हूं मैं, आइए कोई ऐसी ऐप बनाएं, मिलकर ऐप बनाएं, कोई सॉल्यूशन पेश करें जिसके नतीजे में सारे के सारे लोग, अगर जो हमारा मर्दमशुमारी का इदारा है वो अगर हमें काउंट नहीं करता है, हम अपने आप को तो काउंट कर सकते हैं। हम अपने आप को जब तक कि किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं करेंगे उस वक्त तक हम ये नहीं बता सकते। हम ज़बानी तो कह सकते हैं कि हम 3.5 करोड़ हैं, हम ज़बानी तो कह सकते हैं, नारा लगा सकते हैं कि हम 3.5 करोड़ हैं, लेकिन कहाँ है वो रजिस्ट्रेशन बताएगी। कोई जो इन्वेस्टर हजरात हैं, जो लोग पैसे वाले हैं, वो पैसे खर्च करें, नौजवानों को अपने साथ मिलाएं और साथ मिलाने के बाद कोई ऐसी ऐप बनाएं। वो ऐप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हो सकती है कि कराची के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट हैं हर एक की अलग अलग ऐप हो, उसको एक्यूमुलेट कर दिया जाए तो पता चलेगा कि कराची के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग रहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने पथारे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने भिखारी हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी दुकानें हैं। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा, जब तक हम कराची को ठीक नहीं कर सकेंगे। हमें ठीक करने के लिए डेटाबेस चाहिए होगा। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दीजिए, शकीरुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।